جی، عمران خان کی بیوی رو پڑی ہے، اس کے اوپر آپ تفصیل سے ویڈیو دیکھیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آج جناب 4 تاریخ ہے اور 13 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مین کیس لگ گیا ہے۔ فیڈرل والے جو ہیں وہ فوراً رابطہ کریں، پورے پاکستان کے فیڈرل ملازمین جو ہیں فیڈرل والے، اور صوبائی صرف صوبہ پنجاب کے رابطہ قائم کریں۔ تو ان کے جناب کیس ہم شامل کر رہے ہیں۔ اپنا شناختی کارڈ چاہیے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے، جس سے آپ کو جناب آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ہر پاکستانی جو پینشن لیتا ہے یا جس نے سرکاری جاب کی ہے اور وہ چھوڑ بھی دی ہے، چلا گیا ہے، اوورسیز چلا گیا ہے، وہ سب ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ فیس تھوڑی سی ہے لیکن مشورہ فیس فری ہے۔ آپ کو جناب ہمارے موبائل نمبر جو ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ کس نے کہا تھا جی میں آپ کو رلاؤں گا؟ فرعون کے لہجے میں کہا تھا کہ میں آپ کو رلاؤں گا، آپ کو میں گرفتار کروں گا، آپ کو میں ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جی اس نے کہا تھا جڑی ساری دنیا آزاد ہے تے آج صرف وہی جیل چ۔ مانی خان نے کہا تھا کہ جناب علی میں آپ کو رلاؤں گا۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز جب یہ آوازیں اٹھاتے تھے نا کہ ہمیں مریم نواز کو کیوں والد کے سامنے گرفتار کیا گیا یہ وہ، تو یہ فرعون کے لہجے میں کہتا تھا کہ میں آپ کو رلاؤں گا۔ اور آج اس کی بیوی جو 5 بچوں کو چھوڑ کے بھاگی ہے، بشرا بی بی، جی آج وہ پھوٹ پھوٹ کے عدالت میں رو پڑی۔ اس کا کوئی جادو ٹونا کام نہیں آیا اور وہ اپنے ہی وکیلوں پہ برس پڑی۔ اس نے کہا جی میرے وکیل ہوں یا دوسرے، یہ سب ٹائم ضائع کرتے ہیں، مجھے کوئی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ حالانکہ تجھے ہی تو انصاف ملا ہے کہ تم باہر آئی ہو، ورنہ جو تمہارے ظلم ہے نا، ابھی تو اس کے اوپر حکومت نے کوئی تحقیقات نہیں کی کہ جناب یہ جو بچوں کو مارنے کے آپ کے اوپر الزام ہیں، جو کالے ٹونے کے ذریعے آپ ساری چیزیں کرتی ہیں، آپ نے تو خاور مانے کا کو رلایا ہے، اور تو اور اپنے خامن کو، بچوں کو رلایا ہے۔ آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں بشرا بی بی، جادوگرنی، اور وہ وہاں پہ روئی ہیں جناب علی کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ اگر تمہیں انصاف نہ مل رہا ہوتا اب تک تم سب یہ ہو چکے ہوتے جو تم نے ملک کے ساتھ کیا ہے۔ تم تو سارے باہر دندناتے پھرتے ہو، اور عمران خان اس کی زبان نہیں اس کو باہر آنے دیتی۔ کہندہ ہے ماسی کانی او کانی ماسی لسی تا دے۔ انہیں کہا جیڑا بیٹا تیری زبان دی مٹھاس ہے نا، تینوں لسی نہیں میں دودھ دے دیاں گی۔ ہر روز جیل سے ابھی بھی وہ بیان دیتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جی بیٹا پھر پڑے رہو، ادھر پڑے رہو۔ یہ کہتے ہیں کہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں نا، دوسرا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ عمران نے لوگوں کو زبان کے زخم لگائے ہوئے ہیں، بد زبانی سکھائی ہوئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ قاضی فائزی نے کیا کیا ہے بتائیں؟ ریٹائرمنٹ لے کے وہ چلا گیا ہے اور اس کے پیچھے اس نے لگا دی ہیں اپنے پلے اور اپنے سارے آوارہ لوگ لگا دیے اور نعرے لگا رہے ہیں جگہ جگہ۔ کل پھر انہوں نے نیا تماشا کیا ہے۔ تو جناب یہ مکافات عمل ہے۔ عمران آپ کو مکافات عمل کا سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا تو یہ سن لو کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہوتے ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ تم فرعون بنے تھے، تم نے سمجھا کہ شاید اب سدا حکومت میری ہی رہے گی۔ تم بھول گیا تھا فرعون کا انجام، نمرود کا انجام، اور تم نواز شریف کو فرعون کہتے تھے، اس لیے میں نے آپ کو فرعون کہا ہے۔ آپ نواز شریف کو کہتے یہ وقت کا فرعون ہے، کہتے تھے نا؟ تو آج الحمدللہ وہ باہر ہے اور آپ ہی اندر ہے، صرف
सारी दुनिया बाहर है, और शहबाज शरीफ के नरम वजीर आज़म के होते हुए भी आपके इतने जराइम हैं कि आप बाहर नहीं आ सकते। और बुशरा बीबी आप किस चीज़ के लिए रोती हैं कि मेरे वकील भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं? तुम्हारे ऊपर केस थोड़े केस हैं, वो तेरे ऊपर तो तेरे अपने खामद ने ही केस किए हुए हैं, वो ही नहीं ख़त्म हो रहे। बुशरा बीबी तेरे ऊपर तो तेरे खामद ने केस किए हुए हैं, अभी तो तुम्हारे बच्चे बेचारे खामोश हैं। पीरी मुरीदी के चक्कर में आपने क्या किया है? आपने जुल्म किया है। पीरी मुरीदी में ये नहीं होता कि जनाब मुरीद अपनी पीरनी भगा के ले जाए। ये वाहिद पीर है और वाहिद मुरीद है दुनिया का जिन्होंने ये वाला जुर्म किया है। इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इस अदालत में पेश नहीं होगी और तुम अपनी मर्जी से पेश हो रही हो। आपको पेश होना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। जब कोई मुलज़म बन जाता है वो अपनी मर्जी से आप नहीं आई कि मैं आइंदा पेश नहीं होगी, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता और ये वही इंसाफ। अभी तो आपके जज बैठे हैं सारे, आपको जमानत मिली है तो आप बाहर आई हैं, ये कहाँ से इंसाफ मिला है आपको? लिहाजा ये एक खबर है। और 5 केस हैं जी इमरान खान के जमानत के लिए और एक बुशरा बीबी का जो आज महफूज फैसला कर दिया। ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी ना होती, ये शहबाज भाई की नरमियाँ ना होती तो आज तुमने आना नहीं था। तुम्हारे ऊपर तो अभी भी केस हैं। और अमीन गंडापुरी कल मिल के गया इमरान खान को, उसके ऊपर 21 मुकदमात एक दिन के हैं, नहीं पकड़ा, हुकूमत नहीं पकड़ती। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जनाब टॉपिक वो इंतज़ार पंजोथा एडवोकेट साहब जो हुए हैं वो काबिल बिल्कुल अफसोस है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और लेकिन उसको भी ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मजम्मत कर रहे हैं ना आपके सामने। इंतज़ार पंजोथा एडवोकेट को जिस तरीके से पकड़ा गया और फिर छोड़ा गया, और उसने खुद बयान दिया कि जी मुझसे 2 करोड़ रुपया तावान मांग रहे थे, और उसने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि मुझे कौन पकड़ के ले गया। और भाई बताओ कौन पकड़ के ले गया? वो तो हर रोज एक केस लगता था। अटार्नी जनरल कहते थे जी आइंदा 24 घंटे में आपको मैं रिपोर्ट दूंगा, आइंदा 24 घंटों में दूंगा, आइंदा। तो एक 24 घंटे जो पिछले गुजरे थे उसमें उन्होंने कहा थी मैं अगले 48 घंटों में दूंगा, वो आ गया। अब कह रहे हैं जी ये मंसूर अवान जो अटार्नी जनरल है ना, ये सारी उसकी कारस्तानी है। शर्म करो, ऐसे ही पीछे टीम का डब्बा लेके पड़ जाते हो, जिसके मर्जी पीछे पड़ जाओ। हाँ, आपकी तरबियत ही ऐसी है। शोएब शाहीन साहब, आपको आज जज ने डांटा है कि अटार्नी जनरल का क्या इसमें कसूर है। अटार्नी जनरल कहा जी कि इन्होंने मेरे पीछे पीपा लग के तो पड़ गए। तो इनका कोई दीद लिहाज, इनकी ये आंखें जो है ना इधर आने में, माथे पे आने में 2 मिनट इमरान खान लगाता है, और वैसी उसकी टीम है। तो इंतज़ार पंजोथा के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसमें अटार्नी जनरल का कोई कसूर नहीं है, और ये अटार्नी जनरल के खिलाफ जो झूठे प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं कि इसके पीछे ये है, इस्तीफा दो, ये वो, ये सब बकवास है और आइंदा ऐसा ना करना। ठीक है। आज और इमरान खान का तोशाखाना 2 के ऊपर भी लगा हुआ है जी जमानत की केस। वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के पास लगी है, इसमें भी उसने जमानत ले लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि जिस जज के पास ये केस लगा है ना, तो उसने बुशरा बीबी की ली है को अक्यूज्ड, वो कहते हैं केस एट पार, इसे कहते हैं केस एट पार, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, कि जनाब ये एक उसी केस में एक मुलज़िमा की हो गई है तो इसकी भी लो। हालांकि वो बतौर खातून उसकी ली गई है ज़मानत, तो इमरान खान की ज़मानत नहीं बनती। ठीक है, नहीं बनती। तो दूसरा जनाब अली अगली खबर ये है कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जनाब आज बुलाया गया है, काबीना का भी बुलाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इनसे फाइनल नहीं हो रहा। अपनी हुकूमत पे हम खुद तनकीद कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। जो आम लोग हैं ना, उन्होंने भी पता लग गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दे विच इन्होंने की कीता सी वजीर कानून ने। पहले कानून नहीं था, एक चीफ जस्टिस देते थे भाई केड़े केड़े जज को केस जान के, उसको कहते हैं मार्किंग करते थे। तो अब जनाब अली इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाए कि जनाब 3 जजों की कमेटी ये करेगी। काजी फायजी से के ऊपर यही राय है, उसके हाथ पांव
आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बांध दिए थे गाजी फैज़ ईसा के, आपको पता है ना। तो जब वो आखिरी महीने जाने लगा तो फिर ये सदारती आर्डिनेंस ले आया कि नहीं जी, एक सीनियर होएगा, एक चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का। तो फिर क्यों मुंह काला क्यों किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का? वो तो पहले ही चीफ जस्टिस कर रहा था। अब 3 में से एक चीफ जस्टिस अपनी मर्जी करेगा तो वो फिर अपनी मर्जी करेगा ना, जेड़ा मर्जी वो थले वाला आखिरी जज ले आवे कि आओ जी आप कमेटी में बैठ जाओ। तो ये क्यों कानून लाए हो? ऐसा गंदा कानून क्यों लाए हो? इसको वापस लो। आज फिर उसके ऊपर बहस होगी और वो आर्डिनेंस को जनाब कानून की शक्ल दी जाएगी। अफसोस है कि एक मामूली सारे केस को आपने 3 दफ़ा किया है और काजी फैज़ ईसा के हाथ पांव बांधे हैं आपने इस केस से। अब जो जाहिया अफरीदी हैं वो आज़ाद होंगे, अपनी बेशक कमेटी में जो मर्जी रखें और वो करें। ठीक है जी, ये है। और दूसरा, आज जनाब जजों की जो इजाफा हो रहा है उसके ऊपर भी ये बना रहे हैं कि जजों का इजाफा जो हो रहा है ना, उसके ऊपर भी ये बना रहे हैं कि ये वाला उसे क्या कहते हैं कि जजों में इजाफा किया जाए, 17 से 25 नहीं 50 कर दो। आपसे काम नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बेकार है। जब से मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का 25 साल से लाइसेंस है, 25 साल से मैं 25 साल से देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में ये याहिया अफरीदी, काजी फैज़ सबके सामने मैं पेश होके आया हूँ। ये सब यही है कि जनाब ये 9:30 10 बजे आते हैं, 11:30 फिर वक्फा हो जाता है, 1 घंटा काम करते हैं और उसके बाद फिर 1 घंटा करते हैं तो ख़त्म। बस कोई काम ही नहीं करता। जॉब होती है 9 to 5, तो 9 to 5 की जॉब करे, ये केस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कोई काम नहीं करता सर जी, सियासत ही करते हैं। और जो आपको मैंने बताया है कि सैयद मंसूर अली शाह आईनी जज के सरबराह बनेंगे, ये इसको आप पक्का नोट कर लें। कल इन्होंने बनना है, कल मीटिंग का फैसला होना है, कल बड़ा अहम है दिन। कल इन्होंने जो नाम पेश करना है याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब का, सीनियर मोस्ट वही है। तो पीपल्स पार्टी ने उसको वोट देना है। ये नोट कर लो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो जेड़े तुसी बच्चे से ना जिस चीज़ वास्ते, काजी ईसा भी तुहाडे कोल चला गया है और मंसूर अली शाह आपका चीफ जस्टिस भी बन जाएगा। सारे सियासी केस उसके पास आ जाएंगे। हाँ जी, आपकी ये पॉलिसियाँ हैं। आपको आईना दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, आईना दिखाना। ठीक है जी। और उसके बाद कल जो है वो इलेक्शन है अमेरिका का। पूरी दुनिया का इस वक्त वो नज़र है अमेरिका के ऊपर। और वो जो ट्रंप है वो अभी से इल्ज़ाम लगा रहा है कि जनाब अली धांधली हो रही है। ये एक ही नस्ल के बंदे हैं सर जी। ये 3 बंदे आप नोट कर लें, मोदी, ट्रंप, इमरान खान, ये एक ही नस्ल के हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर जनाब आप बताएं कि कल ट्रंप ने जीतना है कि नहीं जीतना। ठीक है। वैसे कैमला हैरिस जो है ना वो नंबर 1 पे है, लेकिन यूथियों ने अपने इसको बाप बना के उम्मीद लगाई हुई है कि ट्रंप आएगा, इमरान को छुड़ाएगा। हाँ जी, वो आई ताड़े वास्ते रहे। जेड़े 256 मुल्क है ना वो सिर्फ इमरान के लिए आ रहे हैं। ऐसी गंदी नस्ल है ये, ऐसे गंदे नारे देते हैं कि अल अमान व अल हफीज़। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।